And we get sick with junk food. Earth gets sick with junk energy. That junk energy doesn't belong to her flow. She's got amazing energy. But those energies are what are the part of the self-organized, self-renewable systems. Most of the food you eat today is produced by the toxic cartel of big agribusiness companies. But there are people in the farming sector who decided to fight for you. Fight against what? Poisonous chemical inputs in our food and drinks and a misleading narrative of food crisis solutions. They sent a strong message from the heart of Delhi to the power elite. And there, a bunch of women, they save seeds for you, they feed you, they take on the struggles and broken food system to make your life easy. The annual Bhumi Festival is a unique gathering that stands up against fake food and for natural farming. Women's participation in agriculture is often ignored, but they are the ones who save seeds and fight hard against agri-food business, an industry that is hungry for billions of dollars in profits that it can make from the inhuman patenting of seeds, from the toxic sale of chemical fertilizers and pesticides. Right now, 80% of India's earning women are into farming sector. 33% of them are farmland laborers and 48% are self-employed farmers. But only 13% of all Indian women own land. Is this why the enormous contribution of Indian women to the country's farming sector is trivialized? In this patriarchal society, women's role in farming is brutally downplayed. Wherever a farmer's picture is displayed, it is usually that of a man with a sickle or a shovel on his shoulder. In fact, women are right at the center of farming activities, not only in Bharat, but all over the world. They are the ones who toil most on the farmlands. Small farmers and rural women are the backbone of our agriculture. The economic survey for 2017-2018 reveals something alarming. More and more men are leaving their villages and migrating to the cities in pursuit of currency. And women are single-handedly running the agriculture sector. From seed savers to cultivators to entrepreneurs to farm laborers, their presence is omnipotent. Yet, their contribution to soil and food is ignored by the male-dominated society. जहरीली दवाई डालो खेत में तो एक बार की तो फसल अच्छी होगी और जैसे वह नीचे तक जाएगी तो मुरझा जाएगी, फिर फसल ली होगी। और जैविक खेती ऐसी है कि मतलब जितना भी डालो उतना भी उत्पादन हो तो उसको, इसलिए हम जैविक खेती करते। हाँ, जो जहर नहीं डालते, धरती माँ को जहर से मुक्त करा सकते हैं, इसलिए हम जैविक खेती करते हैं। ये हम नियम से करते हैं और देसी खाद बनाते हैं, देसी दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे कि 10-12 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम है और अंडी के पत्ते हैं, कुछ चिरौल के पत्ते हैं, ये सब मिक्स मिला के कुचल के उसको रस निकाल के उसका छिड़काव करते हैं। इसलिए छोटी वाली इल्ली भी नहीं लगती है पत्तों में, फलों में। पैसे कमाने के लिए कंपनियां चलती हैं, जो इससे हम लोग बीमार होते हैं, दवाइयाँ भरी सब्जी खाते हैं, इसलिए हम बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं उनका। इसलिए हम खुद अपना बनाते हैं, खुद अपना बीज बचाते हैं, इसलिए कि आगे हमारा परिवार भी स्वच्छ रहे और हम भी स्वच्छ रहे। दवाइयों से जहर खा के उपजी है चीज तो अब जहर ही होगा, जो अपनी जैविक है तो जैविक ही उगे आएंगे अपनी। इसमें खास बात क्या है, ये जो चीज है इसमें हाँ, खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि यदि हम ये माने अपनी ऑर्गेनिक चीज खाएंगे जो हाथ से बनी तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, और यदि केमिकल की चीज खाएंगे तो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी भी बीमार होगी। इसलिए हमारा यही कहना है कि हम आने वाली पीढ़ी को बचाएं। ये बाजरा है, ये बाजरा के चावल है, ये समा है, ये समा के चावल है, ये अरहर है, ये दाल है, इसकी दाल संग भी खा सकते हैं आप। महेरी भी बना सकते हैं मट्ठा में डाल के, खीर भी मेवा मखाना डाल के इसका खीर भी बना सकते हैं, इसी की बना सकते हैं, इसी की बना सकते हैं, और पूड़ी भी बना सकते, रोटी भी बना सकते हैं आप। ऐसी बना के पानी लगा के बनाएंगे तो रोटी भी बनती है इसकी। और क्या क्या है, ये क्या है, ये सारे
बताइए स्पाइसेस। है, इसके भी चावल बनते हैं। क्या है? काउनी काउनी। हाँ काउनी है, इसके भी चावल बनते हैं। और जे पीला वाला सलसा है, इसका ऑयल निकलता है। These women have come from Uttarakhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. They have a strong message to corporate giants who are trying to illegally patent seeds, sell costly chemical inputs and eventually destroy our farming sector. हमारे पास ये धान है, हमारे यहाँ पर ज्यादा मात्रा में, किसी दूसरे के पास नहीं। हम आपस में मिलजुल के इसको बांट के बोते हैं। अगर उनके पास कोई दूसरा बीज हो हमको देते हैं, हम ऐसे आपस में बांट के इसको बोते हैं। ये क्या है? ये लौकी का बीज है ये। हाँ लौकी का बीज है। ये लंबी वाली लौकी होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखो, हाँ ये इसको भंगजीरा बोलते हैं। इसकी चटनी बनती है, इसका तेल भी निकलता है। ये झंगोरा है, इसको कूट के इसको खाते हैं, खीर में भी बनाते हैं। और जिसको जैसे शुगर की बीमारी ऐसी होती है तो ये इसके लिए बहुत लाभदायक है ये। हाँ ये फिर ये लाल धान है, ये धान का बीज है। तो ये विलुप्त हो गया था, अभी ये चलन में आ गया। फिर किसी के पास मिलके अब फिर इसको बोने बैठ गए। तो ये दवाई के काम भी बहुत आता है। इस पे इसको बो तो इसको जब भी ये पकने के लिए हो जाता है तो इस पे बहुत ज्यादा खुशबू आती है। हम कंपनी का कुछ भी नहीं लेते हैं, कंपनी का क्यों लेना है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी बीज को खाते हैं। और कंपनी का लाएंगे वो एक बार उगेगा, फिर दूसरी बार वो फिर बीमारी अलग आएगी, हमारी फसल अगली बार से नष्ट होने बैठ जाएगी। तो हम अपने ही बीज यूज करते हैं। हाँ मिट्टी को भी बुखार लग जाता है दुनिया भर के। अगर हम केमिकल बाहर का बीज लाएंगे, केमिकल डालेंगे, मिट्टी को भी बुखार हो जाएगा, वो जल जाएगी, खत्म हो जाएगी मिट्टी। तो हम नहीं यूज करते हैं इसको। कितने सारे बीज देख रहे हैं हम लोग, ड्राउट रेजिस्टेंट है, सॉल्ट है, वो ये सब लिखा हुआ है। क्या है ये? अच्छा वो सब रेजिलिएंट की वैरायटी है। अच्छा नाम बोलेंगे? हाँ मेरा नाम हरीश मिश्रा, मैं उड़ीसा की बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे पास एक सीड बैंक है, सीड बैंक में 11 से वैरायटी है। इसी सीड बैंक में जो 11 से वैरायटी, इसका इसी में क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी 570 प्रकार है, वैरायटी है, प्रकार है। इसमें ड्राउट वैरायटी जो है वो सूखा खेत जो है हमारा इसी अंचल में होता है। जो सॉल्ट वैरायटी है, सॉल्ट टॉलरेंट जो है वो जिस एरिया में इलाका में नमक ज़्यादा होता है, इसी इलाके में सॉल्ट वैरायटी होता है। जब फ्लड एरिया में, बनिया तो बहुत सारा इलाका में होता है ना, इसी इलाका में फ्लड टॉलरेंट होता है। और एरोमेटिक जो है उड़ीसा में बहुत सारा त्योहार आता है। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो सॉल्ट वैरायटी है, जो ड्राउट वैरायटी है, जब ये समस्याएं आते हैं तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बेचते नहीं। क्यों बेचने से कोई किसान किराया करते नहीं। इनके पास किसान उड़ीसा में खूब माने गरीब किसान है, इनके पास पैसा नहीं, किराया करते, इसलिए हम इनको देते हैं मुफ्त में। Bhumi Festival is organized annually by food scientist Dr. Vandana Shiva's Navdanya Group. It is a celebration of women's power in saving seed, society and humanity. Thanks for watching. For more such stories, you can log on to our website empirediaries.com. You can follow us on Facebook and on Twitter, and don't forget to subscribe our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon so that you get notified whenever we publish such reports. सहज